Good morning, students. How are you? Today we will start next chapter, next lecture of the class 6 maths exercise 4.3. In previous lecture, we have completed exercise 4.1 and 4.2. I think all of you have completed your work and you have no doubt. If you have any doubt, please ask to on my WhatsApp number. Now today we will start our lecture. Our topic is the exercise 4.3 angles. Angles. If two rays have a common endpoint, then these two rays make an angle. It means if two rays have the common point, have a common endpoint, then these are making angles. For this, you have look here. Suppose this is the one ray OA. Then second ray is there OB. Both are have the same common point O. So these are the making the angle. This is the B point. This is the making angle. We have write this. This is the sign of angle. We have write is the BOA, or it will be represent like this AOB. So you have to clear that if we have the two rays, this is the two rays, this is the A, B, then the second ray AC. In this question, this is the common point. What is this? Common point. So this makes the angle. This is the angle. Which one? We will represent this one BAC, or will be represented by CAB. We have to clear that. Now interior and exterior angle, OP angle. Suppose this is the, we have to given this angle. This is the A, this is the O, this is the B. Suppose we have to given an angle AOB. What is the interior region? This is the interior. Then outside this angle, this one, this is the exterior region. Clear that? Now this is the angle PQR. We take 3 points. This is the A, this is the B, this is the C. Now this is the point. This is point in the interior. This is point exterior region. This is point on the angle. Now you have to clear that if you have to given an angle, inside the angle any point, it is called the interior region, and any point outside the angle, it is known as the exterior angle. And if any point is the on the ray, so it is called the on the angle. Okay, this is our point. Now suppose you have to given a figure. This is the A,
this is the B, this is the C, this is the D. How to write the angles? How to write the angles? This is the angle sign. 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 Clear? We will start first from A. We will start from first A. A, then B, go to B, then C. So this is called the angle ABC. Now we will start from the B. B to C, as C to D. B, C. This is the angle BCD. Now we will start from the C. C, D, A. This is the angle CDA. Now we will start from D. We will start from D. D, A, B. Means in this figure there are the 4 angles. Now you have to clear that how to write a angles of a given figure. Suppose what next? Name the angles of the given figure. सबसे पहले नेम द वर्टिस ऑफ द फिगर. मीन्स इन दिस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, फिगर को नेम दे दिया. सपोज इसने क्या किया, हमें एक फिगर दी गई है. क्या दी गई? एक फिगर दी गई है. ऐसा दी गई है. सबसे पहले हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया, वर्टिस के नाम दे दिए A, B, C, D. नाउ स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट किया और सी की तरफ को गए. यानी कि क्या किया, हमने ए से स्टार्ट करा और सी की तरफ को गए, तो ये एंगल बन गया हमारा कौन सा, ABC. अब हम क्या करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे और सी डी की तरफ को आएंगे, एक एंगल बन जाएगा हमारा ये वाला. फिर हम जाएंगे सी से स्टार्ट करेंगे और डी को होते हुए जाएंगे, एक एंगल बन जाएगा हमारा ये. फिर डी से स्टार्ट करेंगे, फिर एक एंगल बन जाएगा ये. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाम सेकंड क्वेश्चन, नेम द वर्टिस ऑफ द गिवन फिगर. नेम द वर्टिस ऑफ द गिवन फिगर. सेम मेथड. सपोज यू हैव टू गिवन a figure like this way. Now we have write the, give the name of this one, name of the vertex P, R, S, T. You will start from any point. आपकी मर्जी है कि आप इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए. सपोज मैंने P से स्टार्ट किया. कहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान से रखिए, P से स्टार्ट किया और आपको तीसरे पॉइंट पे जाना है. बस एंगल का नाम लिखने का तरीका क्या है, P से स्टार्ट किया, तीसरे एंगल पहुंच जाओ. तो हमने क्या किया, P से स्टार्ट किया, E पे पहुंचे, फिर कहाँ पे पहुंचे, S पे. तो ये एंगल बन गया PTS. कौन से वाला, ये वाला. अब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम Q, T. E से स्टार्ट किया और कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए. स्टार्ट फ्रॉम T से स्टार्ट किया, क्या है, TSR. तो ये एंगल क्या बन गया, TSR. नाउ वी विल टेक फ्रॉम SRQ. तो एंगल क्या बन गया, S से स्टार्ट किया, R से गए Q तक. यानी कौन से वाला एंगल, ये एंगल. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम R से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे, एक एंगल आपको मिलेगा ये. उसका क्या नाम हो जाएगा,
क्यू पी। अब नेक्स्ट एंगल हम भी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्यू से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्यू से, और ये जाएगा तो एंगल बन जाएगा आपका क्यू पी टी। These are the angles. Now you have to clear that how to write angle, but you have to remember one point, that is you will start in this direction or in this direction, means clockwise direction or anti-clockwise direction. This is the anti-clockwise. This is direction clockwise. यानी कि in this condition, in this condition, in this condition, in this condition, in this direction. तो आपको ये फिगर में सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, दोनों डायरेक्शन को आपको एक फिगर में मिस नहीं करना। प्लीज रिमेंबर दैट, आपको दोनों डायरेक्शन को एक भी फिगर में मिस नहीं करना। क्लियर दैट? नाउ इन दिस क्वेश्चन देखो इसमें कैसे किया गया। नेम द वर्टिसेज ऑफ द गिवन फिगर। सबसे पहले क्या किया, इसके नेम वर्टिस दे दिए। जैसे क्या क्या वर्टिस दिए हमने, देखिए अब हमने क्या क्या किया। हमने P दिया, क्या दिया, P Q R S T। हमने स्टार्ट किया P टू P, स्टार्ट फ्रॉम P गो टू S। तो हम क्या कर रहे हैं, P से स्टार्ट कर रहे हैं, S की तरफ को जा रहे हैं। यानी कौन सी डायरेक्शन लिया, ध्यान रखना, रिमेंबर दैट, कौन सी डायरेक्शन ली है हमने इसमें, ये वाली डायरेक्शन ली है। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो अब हम उसमें क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे। तो कहाँ से स्टार्ट किया, P से स्टार्ट किया, T पे गए और S पे पहुंच गए। तो आपको एक एंगल मिल गया, ये वाला मिल गया, नहीं मिल गया। और ये क्या है, ये एंगल क्या हो गया, एंगल PTS। नव स्टार्ट फ्रॉम T गो टू R, जाना इसी डायरेक्शन में, कहाँ से गए, TSR। तो आपको एक नया पॉइंट मिल गया, एक नया एंगल मिल गया, कौन सा, TSR। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, P भी हो गया, T भी हो गया। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, SRQ। SRQ आपको एक नया एंगल मिल गया, कौन सा, SRQ, ये वाला मिल गया, नहीं मिल गया। तो आपने P से स्टार्ट किया, फिर T पे गए, फिर S पे गए, फिर R पे गए। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, R से जाएंगे। R से जाने पर आपको क्या होगा, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला एंगल कौन सा, PQR, PQRQ P वाला, RQP वाला, ये एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब एक एंगल और बचा, कौन से वाला, ये एंगल वाला। और ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, QPT से। कहाँ से स्टार्ट करें, QPT से। तो नो हैव टू क्लियर दैट हाउ टू राइट द नेम ऑफ एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर। नेक्स्ट, this is the figure, show that flowing points in angle LMN। क्या किया इसमें, एक एंगल दिया है, कौन सा एंगल दिया है इसने, ध्यान देखना, एक एंगल दे दिया, कोई भी एंगल, कौन सा है, ये दे दिया। कहाँ से दिया उसने, L से। क्या दिया, L, यहाँ पे क्या आया, M, यहाँ पे क्या आया, N। अब ये कह रहा है ए पॉइंट आर इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड द एंगल, तो इनसाइड यही तो है, तो कितना पॉइंट देना ना पे, आर। क्लियर है। फिर कह रहा है ए पॉइंट पी इन द एक्सटीरियर, एक पी लेना एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर में लेना ना, कहीं भी बाहर ले लीजिए उसके। तो ये ले लिया मैंने टी। और एक कह रहा है ए पॉइंट क्यू ऑन द एंगल, कहीं भी, मतलब ये दो जो रे है उस पर कहीं भी क्या करिए, एक पॉइंट ले लीजिए, उसको क्या दे दीजिए, क्यू डाल दीजिए। समझ में आया।
क्लियर हुआ? अब देखो इन क्वेश्चन में क्या किया, ड्रॉ एक एंगल एल एम एन, हमने कोई एंगल ड्रॉ कर लिया और ये कह रहा है कि एक पॉइंट आर इन द इंटीरियर, हमने एक पॉइंट क्या लिया, आर ले लिया, किसमें, इनसाइड। एक कह रहा है एक्सटीरियर, हमने एक पॉइंट एक्सटीरियर ले लिया, और एक पॉइंट लेना ऑन द बाउंड्री ले लिया। तो थैंक यू सो मच, टुडे वी विल स्टॉप आवर लेक्चर हेयर, you have to understand very carefully, so you will do the exercise 4.3, it is your homework, so watch the video, pause the video and note down the points and remember, and after that solve the exercise 4.3. Now we have the recap what will be discussed here. First of all, we have study what is the angle. Angle is nothing, you have two ray, okay, both have the same end point, this is the same end point, and start from the same point, so they will make an row, they will make an angle. It means यदि दो रे सेम पॉइंट से निकल के जा रही है तो वे एक एंगल परफॉर्म करते हैं, एक एंगल बनाते हैं, और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि इसको हम इधर यदि ऐसे जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे एंगल, दिस इज द साइन ऑफ द एंगल। ए बी से स्टार्ट करेंगे, ए पे जाएंगे और सी पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि बी बीच में क्यों आएगा, एक बीच में क्यों आया, क्योंकि इसी पे एंगल बना हुआ है, यही तो एंगल बना हुआ है, देखो ध्यान से, किस पॉइंट पे बन रहा है, ए पे, तो हमने क्या लिख दिया, बी ए सी। यदि हम कहाँ पे गए, एंटी क्लॉकवाइज में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इधर से शुरू करें तो हम जो सी ए बी, क्लियर हो गया? नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली व्हाट इज द एंगल. एंगल इज नथिंग, it is made by the two rays which have the same end point. Clear? Next we have to discuss how to write the name of the angles of a figure. हमने बाद में क्या सीखा कि किसी दी गई फिगर में एंगल्स के नाम कैसे लिख रहे हैं. देखो हमने क्या करते हैं, कैसे लिखने हैं. सपोज हमने एक फिगर ले ली, ये वाली फिगर ले ली. अब हमने क्या किया, इस पे हमने पॉइंट के नाम दे दिए, ए बी सी दे दिया, नहीं दे दिया. अब हमारी चॉइस है, या तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे या इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. ठीक है, तो हम जा रहे हैं इसमें किस डायरेक्शन में, हम जाएंगे इस डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. और ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन है ये, इसको हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो कुछ में क्या करना है, फिर हम एंगल का नाम कैसे लिखेंगे. ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, ए ले लिया, फिर बी पे जाएंगे, और जब तीसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो छोड़ देंगे इसको. क्लियर हो गया. फिर हम क्या करेंगे, बी पॉइंट ले लेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, सी पे पहुंचेंगे और फिर किस पे आ जाएंगे, ए पे आ जाएंगे. तो बी का भी काम खत्म हो गया. और फिर हम किस पे करेंगे, और फिर हम लेंगे सी पे. यानी सारे पॉइंट कवर करने हैं, सी ए बी. अब आप देख रहे होंगे ना, पहले कहाँ से किया, ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुंचे, बी से कहाँ पे पहुंचे, सी पे. तो पहला एंगल बन गया ए बी सी. कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ए बी सी. इसको हम एंगल का साइन होगा ये वाला. फिर हमने बी से स्टार्ट किया, सी पे पहुंचे, ए पे पहुंचे, नहीं पहुंचे, तो फिर एंगल बन जाएगा ये वाला. फिर हम सी, और ये हो जाएगा एंगल. फिर हम सी से पहुंचे, ए से बी पे पहुंचे, यानी कि हमें क्या करना है, सारे एंगल लेने हैं, सारे पॉइंट लेने हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना. दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज. और मोस्टली अधिकतर हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेकर चलेंगे. क्या करेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज ही लेकर चलेंगे। क्लियर हुआ? नाउ नाउ टेक द अनदर फिगर। दूसरी फिगर लेते हैं हम, ठीक है। और दूसरी फिगर क्या है? दूसरी फिगर ले लेते हैं हम ये वाली। ये नहीं लेते, ये हमने फिगर ले लिया। अब इसके एंगल्स के नाम लिखने हैं, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के नाम दे देंगे इनको, पी क्यू आर एस। प्रीवियस फिगर में हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, अब की बार हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, यानी कि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे? इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में। कौन सी में? इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। यानी कौन सी में? क्लॉकवाइज में चलेंगे। किस में चलेंगे हम? क्लॉकवाइज में। अच्छा, it is your choice in which direction you move out, either anti-clockwise or clockwise, but prepare हम मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। हमने क्या किया, एंटी क्लॉक की बात कर रहे हैं, हमने पी से स्टार्ट किया, इसे स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना हमें, तो और इसमें जा गए और कहाँ पहुँच गए, पी एस आर। तो ये पहला एंगल बन गया आपका पी एस आर। पी का काम खत्म हो गया। अब हम एस से शुरू करेंगे, एस पे जाएंगे, आर पे जाएंगे, क्यू पे जाएंगे, यानी कि हमें 3 पॉइंट देने हैं। तो ये एंगल बन गया हमारा कौन सा, पहला एस आर क्यू, ये वाला एंगल। अब हम आर से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, आर से स्टार्ट करेंगे, क्यू पे पहुंचेंगे, पी पे पहुंचेंगे, यानी कि अब हमें मिल गया ये वाला एंगल। ओके, अब हम क्यू से स्टार्ट करेंगे, पी पे पहुंचेंगे, एस पे पहुंचेंगे, तो ये एंगल बन गया हमारा दिस वन। तो वी हैव राइट द एंगल्स ऑफ नेम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी फिगर। तो वी हैव टू क्लियर दैट। ओके, थैंक यू so much. And solve the exercise 4.3. It is your homework. Yesterday we will take test on exercise 4.1, 4.2 and 4.3. So please prepare for that test. Okay, thank you so